Okay, students, we'll begin now. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So this is what we were doing in the last class and the practice for the remaining. So there were two things remaining in the practice. First, the identification of the let sentence as a proposal or request or order command. Okay. So first of all, we have to identify the sentences, whether this let sentence is a order sentence or a proposal sentence or a request sentence. Okay. And then we will practice to convert those sentences into indirect narration. Okay. So I have selected some of the sentences for you here, and my voice is not clear. My voice is not clear to how many of you? Sanwar is saying that my voice is not coming clearly. Are others facing the same problem? Abdul Razak, can you hear me properly? Yes, sir. Yes, Okay, sir, okay. your voice is not proper. Sanwar, are you having the problem still? Yes. Yes. I will move forward, and if any of you are still having the problem regarding the voice, you can just leave the meeting for a while and connect again. So here we are going to do two things. One is we will identify the sentence first. Okay. So who would like to tell me which type of sentence is this? Is it an order sentence or a command sentence or proposal or request sentence? Yes, Mahin? It is a proposal sentence Okay. suggested They for said to us, they said to us, let's go for a walk. So this is suggestion, okay? Suggestion or proposal. Okay. Now let's move on to the next sentence. Next sentence is, let me go. He said, let me go. Who would like to identify this sentence? Yes, Ruhi. Request sentence. Okay, this is request. Very good. Chaliye, let's come to the third sentence. The police inspector said, let no one leave this room. Who will identify this sentence? Yes, Rabia Bakri. command. Yes, this is order, or you can say command. Now let's move on to the fourth sentence, and that is let the child go home. Who will identify the sentence? Let the child go home. ऐसे भी कर सकते हैं हम. She said to us. तो ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको कन्वर्ट करना.
Who would like to identify this sentence? जो लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके अलावा कोई और? माहीन, रूही और राबिया के अलावा ये सब दोहराता। Suggestion. Order. No, it is not suggestion. Yes, it is order. Okay, it is order or command. Now, next sentence is let's take him to the doctor. Who would like to identify this? जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई कीजिए ताकि हम आगे बढ़ें. Salwa, I think your mic is working properly. You should use your mic instead of typing in the chat box. Suggestion. Yes, it is suggestion. Okay, suggestion or proposal. Very good. Now, next sentence is let me go home. The child said to us, let me go home. Who would like to identify this sentence? हमजा, अमान, आप दोनों में से कोई ट्राई कीजिए. Okay, anyone can answer this? Yes, Mahin. Request. Yes, it is a request. Okay. It's a request. Now, let me play now. The boy said to his father, let me play now. Who would like to? Yes, Ruhi. Request. Yes, again, it's a request. Our next and last sentence is, let's not blame others for our failures. Who would identify this sentence? Harsh, your mic is working properly. I think you should unmute yourself and say it. Suggestion. Yes, it's a suggestion or proposal. Okay. It's neither a request nor it is order, but it is suggestion. आइए फिर से देख लेते हैं एक बार कि कैसे आइडेंटिफाई करना है हमको. 2-3 स्टूडेंट्स हैं क्लास में हमारे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, 2 स्टूडेंट्स. तो उनको समझ में आ जाएगा और दूसरे जो है उनका रिवीजन हो जाएगा. तो जब हम इसको प्रपोजल के तौर पर लेते हैं तो ये प्रपोजल के तौर पर कब होता है? जब हम लेट अस के वर्ड यूज करते हैं. लेट अस या लेट्स के वर्ड जब हम यूज करते हैं तो ये होता है प्रपोजल, जिसमें हम कोई चीज से कोई प्रस्ताव, कोई सजेशन दे रहे हैं ना, कोई सुझाव दे रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए. क्योंकि हम अपने ही आप को ऑर्डर नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पर जो अस है वो असल में अपने आप के लिए ही है, उसमें हम भी इंक्लूडेड होते हैं. तो हम अपने आप को ऑर्डर नहीं देते हैं, ये असल में
सब पूरे ग्रुप के लिए सजेशन की तरह होती है। तो जहाँ पे भी लेट अस दिखे आपको वहां पर वो क्या होगा, प्रपोजल होगा या सजेशन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये प्रपोजल या सजेशन जो है जहाँ पर भी है वहाँ देखिए, यहाँ लेट्स हमको दिख रहा है, लेट्स असल में क्या है, लेट अस है। यहाँ पर भी हमको प्रपोजल और सजेशन दिख रहा है तो ये भी लेट्स है। ठीक है, और प्रपोजल सजेशन यहाँ पर भी दिख रहा है हमको तो ये भी लेट्स है। तो ये लेट अस जो है ये आपको एक तरह से एक आइडेंटिफिकेशन है इस चीज का कि ये सजेशन है। ठीक है, आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में आप जो मेन चीज देखेंगे वो ये देखेंगे, जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर आपको जो सेंटेंस मिलेंगे वो होंगे लेट लेट मी टाइप सेंटेंस। आइए देखते हैं इसके अंदर जो सजेशन वाले सेंटेंस हैं, सॉरी रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं, इसमें भी लेट मी दिख रहा है हमको, इसमें भी लेट मी दिख रहा है हमको। तो मेनली जो है ये लेट मी वाले सेंटेंस जो है वो रिक्वेस्ट में होते हैं। ठीक है, इसमें लेट जो है वो जो पहले लेट था ना, ये वाला जो लेट था और ये जो लेट है, इन दोनों के मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। इस लेट का कुछ खास मीनिंग नहीं होता है, हम एक तरह से कह सकते हैं कि चलो के मीनिंग में आता है ये ना, एक तरह से हमारी लैंग्वेज जो हम ट्रांसलेट करें तो। और ये लेट जो है ये किसी को छोड़ने या कुछ करने देने के लिए जो परमिशन टाइप होता है उसके उसके लिए यूज होता है ये। लेट मी कम इन, लेट मी गो, ये उसके लिए होता है। और जब यहाँ पर मी के बजाय कोई और आ जाए है ना, हिम हो जाए है ना, देम हो जाए, अगर इस तरह का हो जाए, लेट समबडी, या प्रोनाउन की जगह कोई नाउन आ जाए जैसे लेट द चाइल्ड, या लेट नो वन। तो ये यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है किसको, लेकिन नो वन कहा गया। तो जब इस तरह की चीज हो तो वो ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर में हमको, मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया था, जो कमांड है उसमें लेट समबडी होगा। ठीक है, जो प्रपोजल है उसमें लेट्स या लेट अस होगा, और जो रिक्वेस्ट है उसमें लेट मी होगा। यहाँ पे दूसरी तरह के सेंटेंसेस भी दिए हैं इसके अंदर, लेकिन वो इतने ज्यादा यूज नहीं होते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वो परेशान नहीं करेंगे। लेट्स नॉट जब हो है ना, तब आपको इसको दूसरी तरीके से भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है, लेकिन जब सिर्फ लेट्स नॉट हो तब। अगर ये सजेशन के लिए है, जब प्रपोजल के लिए है, तभी लेट्स नॉट होगा, वरना ये लेट्स नॉट नहीं होगा। अगर रिक्वेस्ट या कमांड के लिए है तो ये इसका सेंटेंस पूरा लंबा सा बनेगा। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जो लास्ट सेंटेंस है, लेट्स नॉट ब्लेम अदर्स फॉर आवर फेलियर, इस तरह के जो सेंटेंस है वो, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच भी अपनाना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं कि इन सेंटेंस को कन्वर्ट कैसे करना है। ये डायरेक्ट स्पीच में है, हमको इनको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो दे सेड टू अस लेट्स गो फॉर अ वॉक, कौन इसको कन्वर्ट करेगा इनडायरेक्ट नरेशन में? यस माहीन। They suggested to us that we should go for a walk. सजेस्टेड के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे सजेस्टेड अस, हम देख लेते हैं इसके अंदर किस तरह से प्रपोजल को कन्वर्ट किया गया था। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट लगाना था। ठीक है, और अस को हटाकर वी या दे लगाना था। ठीक है, और लेट की जगह हमको शुड का वर्ड यूज करना था। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से सही कन्वर्ट किया है माहिर ने। तो सेंटेंस हो जाएगा दे सजेस्टेड अस दैट, अस जो है वो वी में कन्वर्ट हो जाएगा और लेट जो है वो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है,
वी शुड, इसके बाद का सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा, वी शुड गो फॉर अ वॉक। ठीक है, now let's come to the second sentence, that is request. He said let me go. रिक्वेस्ट को किस तरीके से कन्वर्ट करना है, पहले रूही ने हाथ उठाया, उनसे पूछ लेते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे वो। यस रूही। He requested to let him go. He requested to let him go। आइए देखते हैं कि इसको किस तरीके से रिक्वेस्ट किस तरीके से कन्वर्ट किया है। लेट को हम टू लेट में, मतलब लेट से पहले टू लगा देंगे, है? तो इस तरीके का सेंटेंस जो है टू लेट मी गो, तो लेट से पहले टू लगा देंगे। ठीक है, और जो मी है वो अकॉर्डिंग टू रूल चेंज हो जाएगा, है ना। और हमको मी को चेंज करने के लिए यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कहने वाला कौन है, सेंटेंस को किसने कहा है। अगर ही ने कहा है तो यहाँ पर हिम आ जाएगा, अगर शी ने कहा है तो हर आ जाएगा, अगर दे है दे सेड, तो यहाँ पर फिर लेट सॉरी, अगर यहाँ पर ही और शी या फिर कोई नाउन है, मान लीजिए कोई मेल है ना, कोई फीमेल है, तो उस तरीके से आपको यहाँ पर वर्ड को चेंज करना रहेगा। ठीक है, आइए आखिर में चलते हैं, सेंटेंस लिख देते हैं। सॉरी, ही रिक्वेस्टेड to let him go. Now, third sentence, the police inspector said, let no one leave this room. Who would like to convert this sentence into indirect narration? चलिए समझ लेते हैं पहले कि ऑर्डर्स को कैसे कन्वर्ट करना है। रिपोर्टिंग वर्ब को हम ऑर्डर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, है ना, इसको हम ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, फिर लेट की जगह पर हम दैट लगाएंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लेट को हम शुड में चेंज कर देंगे। ठीक है, और इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम दैट वर्ड का यूज करेंगे, तो हो जाएगा द पुलिसमैन सेड की जगह ऑर्डर्ड दैट। ठीक है, क्या ऑर्डर किया, दैट द मैन, लेट शुड में कन्वर्ट होकर मैन के बाद आएगा, द मैन शुड गो। क्या बोला, द पुलिसमैन सेड की जगह हो गया ऑर्डर्ड, उसके बाद आया दैट, लेट जो है वो नाउन के बाद चला गया, यहाँ पर चला गया। ठीक है, और लेट कन्वर्ट हो गया शुड। सो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड दैट द मैन शुड गो। ओके, आइए अब देखते हैं इसके अंदर क्या होगा, कोई ट्राई करेगा। यस रजा। The police inspector commanded that no one should leave his room. Okay, the police inspector commanded that no one should leave, जिसकी जगह that हो जाएगा that room। ठीक है, the police inspector commanded that no one should leave that room। नेक्स्ट सेंटेंस फिर अगेन एक ऑर्डर है ना, तो फिर ये जैसे ये कन्वर्ट हुआ था वैसे ही ये भी कन्वर्ट होगा। कौन ट्राई करेगा इसको।
अनवर, राबिया, अमान, इसको ट्राई कीजिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं था। And we are running out of time as well. Okay, anyone can convert. कोई भी कर सकता है। Yes, Mahi. She ordered us that the child should go home. Okay, she ordered us that the child, उसके बाद फिर हम let को लगाएंगे जो कन्वर्ट हो गया है should में, ठीक है, should, okay, go home ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। She ordered us that the child should go home. Now next is suggestion. Now suggestion को हम ऊपर कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है, हमने कन्वर्ट किया सजेशन को इस तरीके से। इसको कनेक्ट करने के लिए हम दैट का यूज करेंगे, ठीक है। असल में लेट को ही हम इसको दैट से कनेक्ट करेंगे, लेट को हम शुड में कन्वर्ट कर देंगे, अस को हम वी या दे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और वी या दे के बाद हम शुड को यूज करेंगे और इसके बाद का पूरा सेंटेंस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप पहले ट्राई कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। चलिए, he said let's take him to the doctor. कौन करेगा? यस अब्दुल, He suggested that they should take him to the doctor. very good. He suggested that they should take him to the doctor. Very good. Now request भी इससे पहले आ चुकी है एक बार, है ना, जहाँ हमने देखा था कि सिर्फ हमको ये जो मी है इसको हमको सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना था, रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के हिसाब से, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमको टू वर्ड का यूज करना था। चलिए, अब कौन करेगा इसको कन्वर्ट? इसके बाद का सेंटेंस भी रिक्वेस्ट में ही है तो वो आसान हो जाएगा फिर बनाना। यस रोहित। The child requested us to let him go home. Very good. The child requested us to let him go home. Very good. Now who will convert the next request? The boy said to his father, let me play now. माही ने हाथ उठाया है, कोई और बताएगा? यस रागी। The boy requested his father to let him play then. Very good. The boy requested his father to let him play then. ठीक है, नाउ का देन हो जाएगा। वेरी गुड, आपने याद रखा, बहुत अच्छी चीज है। नाउ वी हैव द लास्ट सेंटेंस दैट इज सजेशन। सजेशन वैसी है जैसे बिल्कुल पहले वाले सेंटेंस में थी सजेशन, ठीक है। द सेज, सेज मतलब जो ये धर्म गुरु वगैरह होते हैं ना, इनको सेज कहते हैं। जैसे कोई जो घूम घूम कर
लोगों को नसीहतें करते रहते हैं, उस तरह के लोगों को हम सेज कहते हैं। तो आपका सेंटेंस है सेंटेंस आपका द सेज सेड टू हिज डिसिपल्स मतलब शागिर्द, लेट्स नॉट ब्लेम अदर्स फॉर आवर फेलियर। चलिए कौन बनाएगा इसको? माही ने हाथ उठाया है। यस माही। The sage suggested his disciples that they should not blame others for their failures. Sir, your voice is not coming. Walaikum salam. Assalamualaikum. Walaikum assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.